Yes बच्चे, so we have discussed about the meaning of human resource. ठीक है, that what we mean by human resource, then its distribution of population, because human resource is related to population of a country. ठीक है, ये हमें पता है कि it is related to population, but that distribution of this human resource is not equal all over the world, है ना. तो it is related to distribution of population. ये जो हमारा human resource है, it is also related to the distribution of population that is not equal everywhere on the earth. ठीक है, so there is various distribution is variation, and then there is also density of population. It is also different in different areas, and then we have discussed various factors which are responsible for different density of population in different areas. ठीक है, and I think factors हमारे complete नहीं हुए थे. तो इन factors में से हमने discuss किए there are geographical factors. ठीक है, geographical के साथ social, cultural और economic factors भी हैं, है ना. तो ये जो factors हैं ये कई तरह के factors हैं. Geographical factors that we have discussed, और geographical factors में तो एक बार factors बता दो आप हमें कि जो जो हमने factors discuss कर लिए थे. So once repeat all the factors that we have discussed. हाँ जी बेटा. Then we will discuss the next factor. हाँ जी, तो रन्या, which factors we have discussed? Yes, ma'am. Topography, climate, soil, water, minerals. Yes, so these geographical factors we have discussed. These factors, no doubt, some are from these all geographical factors. These are all natural factors, है ना? And human have utilized all these factors to make the many human-made resources. And then comes the next social, cultural. अब ये factors कौन से हैं? Which are affecting the density of population, जो population की density को affect कर रहे हैं. तो people that by analyzing these factors we come to know why people prefer to live in one area or other area. ठीक है, so अब इसमें geographical तो हमें clear हो गए कि if there is availability of water, if there is availability of suitable climate, है ना, and if there are many more availability of fertile land or minerals in a one area, then their density of population is more. So what can be the social factor? Social factor which affect the density of population. So social factor, because we are living in a society, है ना. So as a member of society, we have many needs. ठीक है, from that we fulfill from other members of society. So what social factor that is responsible? तो social factor में क्या चीजें आएंगी? If we are having better health facilities, हमें health, क्योंकि सारी health facilities हम खुद ही तो नहीं सब अपने लिए सब कुछ arrange कर सकते, हमें health facilities चाहिए, वो भी हमें society के दूसरे members से मिलेगी. Education चाहिए, ठीक है, a different, और हमें अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें housing, electricity, water facility सब कुछ हमें available हो, और साथ ही साथ हमें अपनी occupations, अच्छी occupations भी available हो. तो ये सारे factors किस चीज को affect करते हैं? These all are social factors. ठीक है, तो हम अपनी जो सोशल लाइफ है वो इजीली वहां पे रह सकते हैं. ठीक है, वी कैन लिव आवर लाइफ वेरी इजीली हियर. सो दैट इज व्हाई इन सिटीज देयर इज मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज, बिकॉज इन रूरल एरियाज द मोर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, सो देन कम्स द नेक्स्ट कल्चरल एस्पेक्ट. सो व्हाट वी टेल इन कल्चरल एस्पेक्ट. So culture is related to the, because people are having different cultures, such as Punjabis, they are having different culture, Gujaratis, they are having different culture, है ना. Then if we move to the mountainous area, they are having different culture, Jammu, Ladakh. And if we move to Himachal or Haryana, they are having different. If we move to Tamil Nadu, they are having different culture, and in culture also they are having different religions. So how this affect the density of population?
कल्चर में तो हो गया ना कि उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेज, उनका लिविंग स्टाइल, वो सब कुछ डिफरेंट है, तो उससे डेंसिटी कैसे अफेक्ट होगी? हाँ जी अकुल। यस बेटा। Ma'am, people would prefer those places where their culture is practiced. Like Punjabi people would prefer Punjab, or in a foreign maybe Canada. And different culture means different तो हमें ये है कि अब कल्चर में हम क्या आ रहे हैं? कल्चर में एक तो रिलीजन आ रहा है ना, एक उनका रिलीजन है या उनकी एक कम्युनिटी हो गई है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है या उनकी उस ट्रेडिशंस के साथ जुड़ी हुई है। अगर जैसे कि हमने आपने पिछली क्लासेस में किया होगा टेम्पल टाउन, है ना, टेम्पल टाउन या पिलग्रिमेज टाउन किया था ना, तो वो टेम्पल टाउन या पिलग्रिमेज टाउन क्यों डेवलप होते हैं? कि इफ पिलग्रिमेज विजिट दैट प्लेस, पिलग्रिमेज उस प्लेस को विजिट करते हैं, अगर पिलग्रिमेज होगा, चाहे वो टेम्पल में विजिट कर रहे हैं, चाहे वो मॉस्क्यूज में विजिट कर रहे हैं, चाहे वो अगर चर्च वहां पे बना हुआ, कुछ भी, मतलब उनकी एक रिलीजियस प्लेस है। अगर जैसे बुद्धिस्ट है तो वो दूसरे कंट्री से यहाँ मोनेस्ट्रीज में विजिट कर रहे हैं, तो कोई भी उनका कल्चर है, कोई भी उनका रिलीजन है, तो जहां उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस का प्लेस है, ठीक है, होली प्लेस है, तो वो वहां जाके भी सेटलमेंट्स वो प्रेफर करते हैं उस एरिया में रहना, है ना। तो जिस जहां पे उनके ट्रेडिशन, जैसे अब हमने अभी अपने हिस्ट्री में डिमांड की सेपरेट स्टेट की, तो सेपरेट स्टेट वो क्यों चाहते हैं? सो दैट दे कैन डेवलप देयर कल्चर, ताकि वो अपने कल्चर को अपने हिसाब से डेवलप कर सके, लोगों को वो सारी फैसिलिटीज दे सके कि जो उनके लिए अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए चाहिए, है ना। तो इसलिए कल्चरल फैक्टर इट ऑल्सो अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो वेयर इफ द प्लेसेस विच आर हैविंग दिस कल्चरल, अब यहाँ पे अगर कोई पिलग्रिमेज सेंटर है या कोई टेम्पल बना हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, कई जगह मार्केट्स बननी शुरू हो जाती हैं, है ना। अगर मार्केट्स बननी शुरू हो जाएंगी तो अपने आप डेंसिटी वहां पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। कोई टेम्पल बन गया, कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस का प्लेस बन गया, तो वहां पे अपने आप डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी हरमन। हाँ जी हरमन, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी बोलो। मैम मेरा ना आज इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है, तो मैम मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा, तो इस करके आप मेरी प्रेजेंट लगा देना। You can message if any such kind of problem is there, ठीक है। So अब फैक्टर्स में से ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर हमें क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक फैक्टर विच आर रिलेटेड टू आर ऑक्यूपेशन, आर जॉब और अर्निंग मनी, ठीक है, दैट हाउ वी आर अर्निंग मनी और रिलेटेड टू द मार्केट। सो इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं डेंसिटी को। कैसे? what you can write in this point, कैसे people will prefer to a place where more job opportunities are available, people will prefer where more industries are established, people will prefer where more markets are available, people will prefer where you can say more big business houses are established, है ना, so they can do job in various multinational companies, they are established their offices. So which place will prefer? And if one place that is not developed, that is just a rural area, no more facilities are available, है ना, तो economically where it will be beneficial for them. हाँ जी अंजनी। Ma'am, the place which is developed, because there they can get job opportunities. Yes, तो अगर कोई जैसे कहीं पे इंडस्ट्रीज लगी हैं, तो इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जैसे हमने आपने हिस्ट्री के कई चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि when their agriculture was not good, so they started moving to the cities, so in search of work in the various industries, ताकि ठीक है उनको इंडस्ट्रीज में कई जगह काम मिल जाएगा। इट मीन्स दे फाइंड वन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनको इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, नेचर के ऊपर। अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, दे हैव टू डिपेंड ऑन नेचर,
तो इट मीन्स अब वो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे कैन अर्न मनी इजीली। तो इट मीन्स कि जहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयमेंट है, और जहाँ पे तो इसलिए वहाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। जैसे कि हमने ओसाका इन जापान और मुंबई, ये दो भी नेम हमने इंडस्ट्रियल रीजन में पढ़े थे, है ना, कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन काफी डेवलप है, तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। सो अब हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि पॉपुलेशन इज नॉट इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, है ना। सो दैट इज व्हाई देयर इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो डिफरेंट ड्यू टू ऑल दीज रीजन। सो अब पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स का ही एक और पॉइंट है कि देयर इज आल्सो चेंज इन पॉपुलेशन, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, डेंसिटी भी सेम नहीं है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन में चेंज भी आता रहता है ना, कि ये नहीं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक एरिया की ज्यादा थी तो वो हमेशा ज्यादा रहेगी, या फिर एक एरिया की पॉपुलेशन अगर जितनी है तो वो उतनी रहेगी। तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो देयर इज चेंज इन पॉपुलेशन, तो उसमें चेंज आता है। ये चेंज किस तरह का हो सकता है? पॉपुलेशन या तो ग्रो कर सकती है, या कम हो सकती है, या स्टेबल रह सकती है ना। तो इस तरह का चेंज हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें कि अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी देखें तो वो भी एक जैसी स्टेबल नहीं है। एज ए हम होल ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, तो हम कंपैरिजन भी करेंगे कुछ एक, ठीक है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो ये स्टेबल नहीं रही है ना, इट हैज नॉट बीन स्टेबल। और ये हम कह सकते हैं कि कई टाइम तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो आपकी बुक में एक टेबल भी दिया है, उसको भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंगली उसमें ईयर वाइज बताया गया है, ठीक है। ये आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 500 BC से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये 500 BC यहां से स्टार्ट करके, फिर जैसे ये 0 डिग्री स्टार्ट करके, फिर ये 1000 ईयर, फिर वहां पे ये 1500, 1800, फिर ये 1900 ईयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1999 और फिर ये 2025 तक उसका नेक्स्ट, जैसे हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई कि दिस विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो इसमें अब इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा, ये जो दिया हुआ है हमें। तो दिस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉपुलेशन इज चेंजिंग, है ना। तो चेंज क्यों हो रही है? पहले तो चेंज के 3 रीजन वो भी देख लेते हैं। एक तो कि बर्थ रेट वो चेंज करता है, एक डेथ रेट उसकी वजह से चेंज हो जाती है, या एक माइग्रेशन, है ना। बर्थ रेट मतलब कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल, कि कितने पर 1000 पीपल लोगों में कितने न्यू बेबी बॉर्न हुए हैं, ठीक है। देन डेथ, कि हाउ मेनी डेथ हैज बीन अकर्ड एट एवरेज ऑफ पर 1000 पीपल। तो इस तरह से एक एवरेज निकाली जाती है। और माइग्रेशन की जो पीपल हैं वो उस एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में गए हैं, तो किसी दूसरे में एरिया में आए हैं। तो एक एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, ये चीज उसको इफेक्ट करेगी, है ना, कि उस एरिया में डेंसिटी कम हुई है, ज्यादा हुई है, या वहां की जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले पूरे अर्थ की एवरेज कितनी थी आप कैसी हो गई है। तो ये माइग्रेशन एक एरिया की पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की तो माइग्रेशन से तो उतनी रहेगी ना, लेकिन एरिया की पॉपुलेशन चेंज में इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें दी हुई है, ये जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन क्या बताई हुई है, 100 मिलियन इन 500 BC, ठीक है। 500 BC में कितनी थी? 100 मिलियन। और उसके बाद 1000, जब मतलब ये 2nd सेंचुरी जब स्टार्ट हुई है ना, 1st सेंचुरी कंप्लीट हो गई, तो इट मींस यहाँ पे 11th सेंचुरी के आसपास ये हो गई 265 मिलियन, ठीक है। और फिर 16th सेंचुरी में ये हो गई 425 मिलियन। मतलब कि यहाँ पे एक 500 इयर्स का गैप पड़ा। गैप कितना था? 500 इयर्स का।
तो पॉपुलेशन नियर अबाउट डबल भी नहीं हुई, है ना। तो यहाँ से अगर 500 BC से यहाँ 1000 ईयर्स तक देखें तो यहाँ पे गैप पड़ गया 1500 ईयर्स का, और पॉपुलेशन 100 से 265, है ना। तो कितनी कम इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हम आगे आगे देखते हैं तो यहाँ 1900 ईयर्स में 20th सेंचुरी तक आते आते ये हो गई 1 बिलियन, ठीक है। 1.6 हम कह सकते हैं कि 1625 मतलब 1 बिलियन, 1.6 बिलियन हो गई, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे 1974 में तो ये 4 बिलियन हो गई। उसके बाद 99 में यहाँ पे 6 हम कह सकते हैं 6000 मिलियन मतलब 6 बिलियन हो गई, ठीक है। और फिर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 8.5 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर 7.9 है तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन की जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो स्टेबल तो है नहीं, इट इज कॉन्टिन्यूसली ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। एक तो चीज यहाँ से हमें ये क्लियर हो गई कि ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब ये इंक्रीज होने के पीछे रीजंस वो भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि रीजन क्या है। हाँ जी अकुल, योर हैंड इज रेज्ड बेटा। हाँ जी मैम मैंने पूछना था कि आप एक बार कल्चरल फैक्टर दोबारा करवा दो। कल्चरल फैक्टर, यस ओके चलो अभी हम ये ग्राफ डिस्कस करके फिर वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, नो डाउट इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही, बहुत थोड़ी सी है, ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज करनी स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ पे आते थे एकदम से सीधा ये 2.5 से, और यहाँ पे गैप देखो नीचे कितना शो किया हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था ना 1500 ईयर्स का गैप था, यहाँ पे 500 ईयर्स का गैप था, यहाँ पे फिर उसके बाद 1800 से 1900, ठीक है, 1 सेंचुरी का ही गैप है। यहाँ पे फिर 50 ईयर्स के गैप में मतलब 1900 से 1950 तो 1.6 से ये 2.5 हुई, फिर 1950 से 1974, इट मींस यहाँ पे सिर्फ 24 ईयर्स का गैप है ना, 24 ईयर्स का हुआ ना 1950 और 1974, तो इट मींस यहाँ 2.5 से 4 मतलब 2.5 बिलियन से 4 बिलियन हो गई। तो ये भी जो अराउंड दिस 1959 और उसके बाद ये जो इसके बीच में ईयर है ना 1959 को, तो इस टाइम पीरियड पर 3 बिलियन हो गई थी, जो आपकी बुक में यहाँ पे रिटर्न भी दिया हुआ है इस साइड, ठीक है, कि दिस पॉपुलेशन 1804 तक ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये सिर्फ 1 बिलियन हुई 1804 तक की बात करें, और 155 ईयर्स लेटर 59 में ये 3 बिलियन हो गई, है ना। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इट बिकेम 3 बिलियन, तो इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मींस व्हेन पॉपुलेशन राइज रैपिडली, जब पॉपुलेशन एकदम से राइज कर जाती है तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। और अगर 40 इयर्स की बात करें तो 40 इयर्स के बाद ये कितनी हो गई, 6 बिलियन। और अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे बेटर फूड सप्लाई उन्हें मिल रही है, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है बेटर फूड सप्लाई मिल रही है, मेडिसिन मिल रही हैं, डेथ रेट जो था वो कम हो रहा है, ठीक है। नो डाउट बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन फिर भी डेथ रेट रिड्यूस हुआ है, बर्थ रेट ज्यादा है इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन स्टेबल थी उसके रीजंस भी कई थे कि लोगों प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं था, ठीक है, और प्रॉपर हम कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज वो अवेलेबल नहीं थी, सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं था, फार्मर्स भी इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे हम ग्रीन रेवोल्यूशन आई, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो सारी लोगों को भी फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हुई, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज भी मिली, तो नो डाउट बर्थ रेट तो ज्यादा था, डेथ रेट कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया तो बर्थ रेट ज्यादा हो गया, इट मींस पॉपुलेशन जो पहले स्टेबल थी, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा थे,
तब पॉपुलेशन स्टेबल थी। अब बर्थ रेट तो ज्यादा है ही लेकिन डेथ रेट कम हो गया तो पॉपुलेशन में एकदम से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये रीजन हो गए इस पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीजें कंसिडर की, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन जो थर्ड है इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्लियर हो गए। ठीक है, कि इसके चेंजेस की वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं और ये दोनों क्या है, नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन तो नेचुरल नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से वो माइग्रेट करते हैं, है ना, लेकिन जो नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन का वो क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और डिफरेंस जो हम इसको कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट जिससे कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो नेचुरल ग्रोथ रेट हो जाता है। और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज है ये किस इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन दिस नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब हम माइग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक जो आपने अभी पॉइंट बोला है, यस एक ये बस देख लो, इसके बाद फिर हम कल्चरल वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तो क्या होगा, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, है ना। बर्थ रेट ज्यादा हो गया, डेथ रेट कम हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अगर बर्थ रेट भी सेम है, डेथ रेट दोनों में बैलेंस बना हुआ है, पॉपुलेशन इज स्टेडी। ठीक है, तो नो इंक्रीज विल बी इन द पॉपुलेशन। अगर बर्थ रेट कम हो गया और डेथ रेट वो क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ नेचुरल, हम कह सकते हैं, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और इसके बाद इस माइग्रेशन रह जाएगा, ये हम करते हैं अभी। ठीक है, तो यहां तक अब ये पॉपुलेशन चेंज क्लियर हो गया। व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज में हमने 3 फैक्टर्स देखे, एक डेथ रेट, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु आर डाइड पर 1000 पर्सन्स, फिर बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, बर्थ रेट, और इसमें तीसरा कॉज है माइग्रेशन जो हमने अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन, दीज आर द 3 causes of population change. Birth rate and death rate, these are natural causes. ठीक है, if both will increase then population will increase. If both will remain same then population will be steady. If birth rate is low, death rate is more, then population will decrease. ठीक है, so now the factors हैं which are affecting this density of population. इसमें कल्चरल, अब कल्चर किससे रिलेटेड है, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे जो हमारा कल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, हमारा लिविंग स्टाइल आ जाता है, हमारे जो ट्रेडिशंस हम फॉलो कर रहे हैं, या हमारा जो रिलीजन, लैंग्वेज जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारे कल्चर में आ जाता है। ठीक है, और जहां पर हमें लगता है कि आवर कल्चर इज रिस्पेक्टेड, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट हो रही है, हमें वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिससे हम अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो भी हम उसको और अगर प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो वो सारी फैसिलिटीज अगर हमें मिल रही हैं तो हम उस एरिया में रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना। आप ही ने बताया था कि जैसे पंजाब में मोस्टली जो पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं वो रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी और, नो डाउट जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं ना कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहां पे आपको हर कल्चर के, हर एरिया के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी एरिया में जाते हो, यहाँ जहाँ पे अगर टेम्पल्स बने हुए हैं तो वहां पे मोस्टली आपको उस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। अगर कहीं मॉस्क्यूज ज्यादा बनी है तो आपको उस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे सेटल अराउंड दोज रिलीजियस प्लेसेस, कि वो उस रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड सेटल हो जाते हैं मोस्टली। ये नहीं कहते कि दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पीपल मोस्टली प्रेफर दोज एरियाज। हाँ जी, आपको क्लियर है बेटा, एनी डाउट। जैसे हम कह सकते हैं कि वाराणसी या जेरूसलेम, वेटिकन सिटी जो आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, अब ये सिटी ज्यादा डेवलप क्यों हो गए, कोई भी सिटी है,
ठीक है। अब ये नहीं कि हम कह सकते कि पीपल तो प्रेफर कर रहे हैं। अब अगर कोई भी, जैसे हमारे इंडिया में कई ऐसे सिटी हैं जो कल्चरली इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जैसे वाराणसी हो गया। अब यहाँ पे और आप कल्चरल इंपॉर्टेंस के सिटीज बता सकते हो, अमृतसर हो गया, है ना, तो उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है। तो अब वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ डेंसिटी की बात करनी है ना, कि डेंसिटी वहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो कोई भी एरिया है जो किसी भी कल्चर से या किसी भी रिलीजन, पर्टिकुलर रीजन, किसी भी कल्चरल इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ, तो वहां की डेंसिटी अपने आप ज्यादा हो जाएगी, नो डाउट कि विच पीपल आर लिविंग देयर। ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर कल्चर रिलीजन को फोकस नहीं करना, हमने डेंसिटी को फोकस करना है कि वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, कोई भी एरिया है जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, जैसे जेरूसलेम है, वहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू द जीसस क्राइस्ट, तो दैट इज व्हाई वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो वाराणसी, वहां पे भी रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं, तो इसलिए वहां पे भी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। क्लियर बेटा? एनी डाउट टिल नाउ? अब ये वाला कल्चर वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, एक्सप्लेन करो इसको। ओके, सो अब इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन चेंज, और इस पॉपुलेशन चेंज में एक और थर्ड जो हमारा है फैक्टर, दैट इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन हम किसे कहते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि पॉपुलेशन में चेंज आता है। अब पीपल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, है ना। अब या तो ऐसा हो सकता है कि पीपल मूव विद इन अ कंट्री, या पीपल दे कैन मूव टू एनी अदर कंट्री। अगर तो वो विद इन कंट्री मूव करते हैं, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग एक एरिया से दूसरे एरिया मूव कर जाते हैं, है ना, तो जैसे रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं, सो दे आर आल्सो माइग्रेटिंग, है ना, टू अर्बन एरियाज। लेकिन अगर लोग कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, है ना। ये दो वर्ड हम यूज करते हैं। सो when people they arrive in a country, so they are the immigrants. When people leave one country, they are the emigrants. ठीक है, so immigration कब होती है? When person enters in a country, and immigration when person leaves a country. इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ये जो माइग्रेशन वाला पॉइंट है। क्लियर?